हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, कला संकेतक एवं कला संकेतक आरेख तथा उसके बाद एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, किसी प्रतिरोधक के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज। In this video, we will discuss phasors and phasor diagram followed by AC voltage applied to a resistor. It is part 2 of chapter 7, alternating current AC of class 12. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। फेजर्स और इसके बाद फेजर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर which represents a quantity varies sinusoidally as a sine function with time। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर को हिंदी में कला संकेतक कहा जाता है, जो कि एक रोटेटिंग वेक्टर है, घूर्णी सदिश है, जो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है, जिसका मान या जो साइनुसॉइडली साइन फंक्शन जैसा समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। That quantity is called phasor. For example, alternating voltage, alternating current, alternating voltage and alternating current both vary sinusoidally with time. So alternating current and alternating voltage are the examples of phasors. Alternating current प्रत्यावर्ती धारा तथा अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी समय के अनुसार साइनुसॉइडली साइन फंक्शन जैसा, साइन वेव फॉर्म जैसा समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। इसलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को फेजर्स कहा जा सकता है। ये दोनों फेजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फेजर। ए फेजर represents a phasor is a rotating vector, is a rotating vector which represents a quantity which represents a quantity varies sinusoidally साइन फंक्शन जैसा, साइन वेव फॉर्म जैसा, sinusoidally with time। This is the definition of phasor. So a phasor is a rotating vector which represents a quantity varies sinusoidally with time। फेजर्स में अब दोनों, चूँकि रोटेटिंग वेक्टर है, फेजर्स को रोटेटिंग वेक्टर के रूप में ट्रीट किया जाता है, तो ये इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। तो फेजर्स को रिप्रेजेंट करना, किसी फेजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मेथड है कि एक स्ट्रेट लाइन से इसके मैग्नीट्यूड को, फेजर के मैग्नीट्यूड को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका लेंथ उस फेजर के पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू I0, और अल्टरनेटिंग दूसरा अगर फेजर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस से जितना वह फेजर क्वांटिटी, जितना वह स्ट्रेट लाइन जिसके द्वारा फेजर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड है, तो वह लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड फेज एंगल। सो फेजर
magnitude. A phasor is represented by a straight line. A phasor is represented by a straight line which represents the magnitude of the phasor, making some angle to x-axis, and that angle represents the direction of the phasor, which is called phase angle. Some angle to x-axis, x-coordinate axis. And magnitude length of the straight line represents the magnitude of the phasor, which represents the peak value of the phasor. Length of the straight line represents its magnitude of the phasor represents the magnitude of the phasor, which is peak value of the peak value of that phasor quantity. The phasor is an alternating current, then its peak value is represented by that line, that is I naught. If on the other hand, if the phasor is alternating voltage, then length of that line represents, that is magnitude of phasor, represents the peak value of voltage, that is V naught, peak value of that phasor. Length of the straight line represents the magnitude of the phasor, which is the peak value, which represents or which is the peak value of that phasor. For example, in case of current, it is I0. That line represents I0, and in Pratyavarti or in case of alternating voltage, Pratyavarti voltage के केस में peak value V नॉट वह रिप्रेजेंट करेगा फेजर के जिसके द्वारा फेजर को जिस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को V0 को। और अगर फेजर अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को का जो मैक्सिमम मान होगा उस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, उस लाइन का लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा I नॉट को। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फेजर आर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, etc. आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेजर्स बिकॉज दीज क्वांटिटीज वेरीज साइनोसॉइडली विथ टाइम। चूँकि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट AC एंड प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों टाइम के साथ साइनोसॉइडली मतलब साइन फॉर्म जैसा, वेव फॉर्म जैसा, साइन फंक्शन जैसा चेंज करते हैं। तो इसलिए देयरफॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेजर्स, etc. आर द एग्जाम्पल्स। अब फेजर को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फेजर में सपोज करते हैं फेजर क्वांटिटी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम उसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम XY प्लेन में एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे फेजर को, और यहाँ पर वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OA लाइन से वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इस लेंथ का, OA का जो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ लाइन OP रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज V नॉट।
एंड इसका जो फेज एंगल है, डायरेक्शन इस फेजर का एक्स एक्सिस से, सपोज करते हैं एक्स एक्सिस से वो कितना है, ये थीटा है, इनिशियल फेज एंगल थीटा इजकल टू ओमेगा टी। तो इंक्लिनेशन है थीटा इजकल टू ओमेगा टी एक्स एक्सिस से, तो ये फेज एंगल कहा जाएगा। तो फेजर को, और फेजर का जो डायरेक्शन होगा, फेजर को रोटेटिंग वेक्टर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर रोटेट करेगा एक फिक्स पॉइंट सपोज करते हैं ओ के अबाउट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर को जब रोटेशन होगा तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा, और क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। तो फेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फेजर ये पिक वैल्यू है, और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फेजर ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओ ए का जो लेंथ है, ओ ए लाइन का लेंथ, वह फेजर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी नॉट को। लेकिन ओ ए द्वारा हम फेजर किस क्वांटिटी, फेजर क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो यहाँ पर फिगर में 1 में रिप्रेजेंट किया गया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को फेजर के रूप में, और ये रोटेटिंग वेक्टर है। तो किसी भी फेजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है भी, चूँकि रोटेटिंग वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर में, फेजर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो वी वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के लेंथ के द्वारा, इस स्ट्रेट लाइन ओ ए के लेंथ के द्वारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा, जो कि पिक वैल्यू होगा वोल्टेज का। तो वी नॉट एंड एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा विच इज ओमेगा टी, और फाई भी सपोज कर सकते हैं फेज एंगल यहाँ थीटा। तो वी नॉट और बगल में एंगल थीटा, मतलब इसमें वी नॉट मैग्नीट्यूड हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पिक वैल्यू, और थीटा एंगल थीटा इज द फेज एंगल। दिस लाइन ओ ए रिप्रेजेंट्स दिस लाइन ओ ए मेक्स एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर which rotates about a fixed point O, and if a phasor rotates in anti-clockwise direction, it is taken as positive, while in clockwise direction, while the rotation of phasor in clockwise direction is taken as negative. Now phasor diagram. After phasor, we have phasor diagram, हिंदी में कला संकेतक आरेख। फेजर डायग्राम भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू फेजर्स का, जो कि सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ फेज एंगल होगा। वह फेज एंगल 0 भी हो सकता है, तो सेम लाइन के एलोंग दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। और फेज एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। और यहाँ पर फेज एंगल को, यहाँ पर जो फेजर है, एक बात और, इसमें फेजर है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस फेजर का वाई एक्सिस पर, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा प्रोजेक्शन का, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो फेजर का होगा, तो वह क्या होगा, ये चूँकि थीटा है तो इधर वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर हो जाएगा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी नॉट इसका पिक वैल्यू है। तो वी नॉट का जो दो कंपोनेंट हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये हो गया वी नॉट साइन थीटा। तो इधर हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। वी नॉट का फेजर के मैग्नीट्यूड का जो कंपोनेंट होगा, फेजर का दो कंपोनेंट, फेजर का जो कंपोनेंट होगा वी नॉट, तो उसका पिक वैल्यू है, तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। या कहिए वी नॉट इसका जो प्रोजेक्शन होगा ए पॉइंट का, इसका वाई एक्सिस पर, वो वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन थीटा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये वी नॉट कॉस किसी टाइम टी पर वी नॉट, ये जो वी नॉट का जो मतलब फेजर का अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट कॉस ओमेगा टी, यह रिप्रेजेंट करेगा उस समय किसी टाइम टी पर, पार्टिकुलर टाइम टी पर वोल्टेज को, दैट इज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज whose magnitude is V0 is V naught sin omega t, which represents the instantaneous value of voltage at time t। तो जिसे फिगर में, डायग्राम में इस फेजर क्वांटिटी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्केच किया गया है। तो उसमें V नॉट साइन ओमेगा टी जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का V नॉट साइन ओमेगा टी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये V नॉट साइन ओमेगा टी किसी पार्टिकुलर टाइम t पर उसके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो नाउ फेजर डायग्राम
और फेजर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू फेजर्स का रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड देयर इज सम फेज एंगल बिटवीन टू फेजर quantities, two rotating vectors. That phase angle may be 0, 90 or any other angle. So phasor diagram, a phasor diagram is a graphical representation, ऑफ एक ग्राफीय निरूपण है किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू फेजर्स, टू रोटेटिंग वेक्टर्स सच एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, टू फेजर्स फॉर एग्जांपल्स वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, rotating with same angular velocity omega sinusoidally with time, rotating with same angular velocity. Suppose that angular velocity is omega and making some phase angle. There is phase angle, a phase angle between them, and making some phase angle between two quantities, some phase angle between two quantities. अब फेजर डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एट फेज एंगल फाई, एट ए फेज एंगल फाई पर। डिफरेंट सर्किट में फेज एंगल वोल्टेज और एंड करंट के बीच में अलग अलग होगा, जिसको हम आगे देखेंगे भी। जैसे रेजिस्टिव सर्किट में एसी वोल्टेज, इफ़ एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड अप्लाइड टू ए रजिस्टर, तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों रोटेटिंग वेक्टर और दोनों फेजर्स वह दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग रिप्रेजेंट होगा, इसलिए कि दोनों सेम फेज में है, तो फेज एंगल 0 हो जाएगा। उसी ढंग से इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज, फेजर वोल्टेज करंट से π/2 एंगल से लीड करता है, तो वहाँ पर फेज एंगल π/2 हो जाएगा। वोल्टेज लीड का होगा और करंट लैग करेगा। उसी ढंग से एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर में उसमें करंट लीड करेगा, अल्टरनेटिंग करंट लीड करेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, वहाँ फिर एंगल π/2 होगा, लेकिन वहाँ करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो इस प्रकार डिफरेंट सर्किट में अलग अलग फेज एंगल होगा, और किसी में वोल्टेज लीड करेगा करंट से, किसी में करंट लीड करेगा वोल्टेज से, और किसी में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा, जिसको कि हम फेजर डायग्राम से फेजर डायग्राम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फेजर डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं टू फेजर्स वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट का, जिनके बीच का फेज एंगल कितना है, फाई है। किसी जनरल केस एक है, और पार्टिकुलर सर्किट के लिए फेज एंगल फिर अलग अलग होगा। उसको हम अलग सर्किट का जो एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में भी, एक सर्किट का, इसके बाद एसी वोल्टेज रेजिस्टिव सर्किट का, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, फिर अगले वीडियो में एसी सर्किट कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर, तो दोनों सर्किट को डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी फेजर डायग्राम हम देखेंगे। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम एक जनरल केस में दो क्वांटिटीज के लिए को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फेजर डायग्राम में दो फेजर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जिनका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, लेकिन उनके बीच में एक फेज डिफरेंस होगा। वह फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है और अदर एंगल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब सपोज करते हैं कि दो रोटेटिंग वेक्टर है, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को, जिसका पीक वैल्यू, जिसका एरो रिप्रेजेंट करता है एरो पर, इसका एरो का मतलब है पूरा जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ, इस लाइन का जो लेंथ है वह रिप्रेजेंट करता है उसके पीक वैल्यू को। और दूसरा फेजर है, क्वांटिटी है, फेजर को हिंदी में कला संकेतक कहा जाता है, और यहाँ पर ये क्वांटिटी है I, और इसका पीक वैल्यू I0, और दोनों के बीच का जो फेज एंगल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है,
करंट से, आई से, कितने एंगल से, तो फेज एंगल फाई से। और यहाँ पर आई नॉट का मतलब करंट का इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है वह कितना है, थीटा इजकल टू ओमेगा टी, थीटा इजकल टू ओमेगा टी, जिसको तो फेजर, जिससे हमने फेजर फिगर 1 में भी रिप्रेजेंट किया था। किसी क्वांटिटी का फेजर्स में चूंकि को रोटेटिंग वेक्टर के रूप में ट्रीट करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और मैग्नीट्यूड उस लाइन के लेंथ से रिप्रेजेंट होगा, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस से जितना इंक्लिनेशन होगा वह उस फेजर का, जिसे फेज एंगल कहा जाता है, वह उसका डायरेक्शन होगा। तो ये फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ए फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग टू फेजर्स, voltage and voltage V and current I inclined at angle, phase angle phi and same with same angular velocity, rotating with same angular velocity omega। ये फेजर डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम ये किसी जनरल केस के लिए फेजर डायग्राम है, और डिफरेंट सर्किट्स के लिए तो अलग अलग फेजर डायग्राम होगा, जिसे हम उस पार्टिकुलर सर्किट में उसको स्केच करेंगे। Next topic of this video is alternating voltage applied to a resistor, that is AC voltage applied to a resistor। अब यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है रेजिस्टर के दोनों इंड से। इस रेजिस्टर के, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, उसके दोनों इंड से कनेक्ट किया जाएगा। तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, जिसके कारण उस रेजिस्टर से होकर करंट आई फ्लो करेगा, जिसके वैल्यू को हम ऑब्टेन करेंगे और देखेंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज, जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट जो ऑब्टेन करेंगे तो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच फेज एंगल कितना है, दोनों का वेव फॉर्म का डायग्राम को स्केच करेंगे, और टाइमिंग डायग्राम और फेजर डायग्राम को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज एन AC source alternating current source of voltage, instantaneous voltage V is connected to a resistor प्रतिरोधक, resistor of रेजिस्टेंस कैपिटल R, रेजिस्टेंस कैपिटल R, और इसको हम फिगर ए में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें फिगर ए इस सर्किट के लिए फर्स्ट सर्किट है, फिगर ए और फिगर 1A। यहाँ पर एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R, रेजिस्टेंस का सिंबल को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस रेजिस्टर के दोनों इनको कनेक्ट कर देते हैं एक AC सोर्स से, जिसका सिंबल को सर्किल दे करके और AC सर्किल का जो वेव फॉर्म है उस सर्किल के अंदर रखा जाता है। तो ये AC सर्किल का AC सोर्स का ये सिंबल है, इससे कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर के दोनों एंड को। और इसका जो वोल्टेज है ये इसका क्रेस्ट है जो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, और ये ट्रॉ इस AC का वेव फॉर्म है, AC अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म, तो ट्रॉ इसके माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो AC सोर्स का ये सिंबल हो गया, ये AC सोर्स का सिंबल है, AC सोर्स, सिंबल ऑफ AC सोर्स। और इसका जो वोल्टेज है, इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके कारण पोटेंशियल रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है, AC वोल्टेज अप्लाई किया गया है रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है उसके एंड्स के बीच में, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, जिसके कारण सपोज करते हैं, सपोज I करंट फ्लोज इन दिस सर्किट। अब इस I का वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे ओम्स लॉ का यूज करके। तो सपोज लेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज गिवन बाय V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। The instantaneous value of AC voltage is given by
V equals to V naught sin omega t. Omega is the angular frequency of AC and V naught is the peak value of alternating voltage. V naught is the peak value or maximum value of alternating voltage and V is the instantaneous value of AC. This is equation 1. Suppose this is equation 1. V naught is the peak value or maximum value and omega is the angular velocity of the AC. Now using Ohm's law, potential drop across resistor R is PD is equal to, using Ohm's law we have V is equal to IR. PD across resistor R is, using Ohm's law we have potential difference across resistor R is V is equal to IR. Therefore I equals to V by R, V upon R, and instantaneous value of voltage is given by V naught sin omega t, that is V naught sin omega t upon R, and V naught upon R, peak value of voltage upon R, that is I naught current, peak AC current, I naught sin omega t. I naught is the peak value of AC, peak value of AC, that is इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान या शिखर मान कहा जाता है, आई नॉट, वेयर आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ AC हो गया, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू, एंड आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t. पीक वैल्यू ऑफ AC इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट. अब दिस इज इक्वेशन 2. अब वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t और करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये करंट है AC, अल्टरनेटिंग करंट AC, instantaneous value of AC I is equal to V by R. This is instantaneous value of AC. Instantaneous value of AC. Instantaneous value of AC. अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो LHS में V है तो यहाँ पर वोल्टेज है तो यहाँ करंट है, यहाँ V नॉट वोल्टेज का पिक वैल्यू है तो यहाँ I नॉट करंट का पिक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी. इसके बाद कोई फेज इसमें प्लस माइनस किसी में वोल्टेज में या करंट में नहीं है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में है. मतलब वोल्टेज और करंट AC सर्किट, इफ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए रजिस्टर देन कोई इसमें फेज एंगल नहीं है. इसका मतलब है कि जितने टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा उतना ही टाइम पर करंट भी मैक्सिमम होगा, और जब वोल्टेज जितने टाइम पर जीरो होगा तो करंट भी उतना ही टाइम पर जीरो होगा. तो उससे हम इसके दोनों का वोल्टेज एंड करंट के लिए उसका टाइम डायग्राम को हम या वोल्टेज एंड करंट के वेव फॉर्म द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों सेम फेज में है, और तब हम फेजर डायग्राम को भी स्केच कर सकते हैं. तो पहले हम टाइम डायग्राम, इसका दोनों का जो टाइम डायग्राम है वोल्टेज और एंड करंट, AC वोल्टेज एंड AC करंट का, मतलब दोनों के वेव फॉर्म को टाइम के साथ वेरिएशन, वोल्टेज एंड करंट का टाइम के साथ वेरिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे साफ पता चलेगा कि जब करंट का वैल्यू मिनिमम है तो उसी टाइम पर वोल्टेज भी जीरो हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, और जिस टाइम पर वोल्टेज मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम हो रहा है. तो दोनों सेम, इसका मतलब है कि दोनों सेम फेज में. इधर हो गया एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसमें दोनों है टाइम के रूप में भी और एंगल के रूप में भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यहाँ पर पहले हम शो करते हैं वोल्टेज को ही, ये एक AC वोल्टेज है का वेव फॉर्म हो गया, यहाँ जीरो है, यहाँ एंगल है, यहाँ पर एंगल, यहाँ एंगल पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में एक कंप्लीट वेव फॉर्म है. और यहाँ टाइम हो जाएगा, टाइम का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, एक टाइम पीरियड का हाफ साइकिल में पॉजिटिव और रिमेनिंग हाफ साइकिल में निगेटिव AC वोल्टेज और AC करंट भी होगा. और यहाँ पर T हो गया टाइम पीरियड T कंप्लीट वेव फॉर्म को का टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा टाइम को, और उसके लिए फेज एंगल कितना है, 2 पाई है, और जब टाइम T/2 है तो पाई है, बीच में टाइम T/4 होगा तो यहाँ पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ 3T/4 टाइम, तो उसके लिए फेज एंगल 3 पाई/2, यहाँ फेज एंगल 3 पाई/2 और यहाँ पर पाई/2 एंगल, तो टाइम हो जाएगा T/4 कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, और यहाँ पर 3 पाई/2 दैट इज 270 डिग्री, तो टाइम T/2 प्लस T/4 दैट इज 3T/4. तो यहाँ पर देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को, ये वोल्टेज का पिक वैल्यू है, ये V नॉट हो जाएगा प्लस V नॉट, और यहाँ वोल्टेज का ही पिक वैल्यू है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस V नॉट हो गया यहाँ,
तो ये वोल्टेज को निरूपित कर रहा है डायग्राम। और करंट का भी देखें तो करंट का भी वही सिचुएशन होगा। करंट का हम इसको डॉटेड से दिखाते हैं, करंट को, इसको डॉटेड से, इसके करंट लाइन, करंट के वेवफॉर्म को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए सेम स्थिति है इसका भी, सेम टाइम पर, दोनों सेम टाइम पर जितना ये करंट वोल्टेज t=0 पर वोल्टेज मिनिमम था, 0 था, तो करंट भी, ये करंट का है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है वेवफॉर्म इसका। तो t=0 पर वोल्टेज भी, ये वोल्टेज के लिए है ऊपर वाला, सॉलिड कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है, और डॉटेड कर्व से करंट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जितने टाइम पर वोल्टेज 0 है यहाँ स्टार्ट में, वही उतना ही टाइम पर करंट 0 है। जितने टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है एंगल, फेज एंगल π/2 पर और टाइम t/4 पर, उसी टाइम पर, उसी फेज एंगल पर करंट भी, यहाँ पर करंट भी मैक्सिमम है। ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है और ये करंट का पीक वैल्यू हो गया I0। उसी ढंग से t/2 टाइम पर या फेज एंगल पाई के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। देखिए सेम पोजीशन से दोनों का वेवफॉर्म पास कर रहा है। और यहाँ पर देखिए फिर 3t/2 पर फेज एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 3t/4 पर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया है -V0, तो करंट भी उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है, उसका पिक हो गया -I0। पिक वैल्यू ऑफ करंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और जितने टाइम पर t टाइम पर 2π फेज एंगल पर फिर वोल्टेज भी 0 है, तो देखिए करंट भी 0 है, दोनों फिर उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t है। तो इसका मतलब कि वोल्टेज एंड करंट जो है, यहाँ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट बोथ फेजर्स बिट टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ भी ये वोल्टेज है, दोनों है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। ऊपर भी वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, नीचे भी वोल्टेज है। तो V एंड I यहाँ लिख देते हैं, इसको V एंड I से y एक्सिस के लॉन्ग, प्लस y एक्सिस और माइनस y एक्सिस के लॉन्ग। तो ये टाइम डायग्राम हो गया वोल्टेज, बोथ फेजर्स, वोल्टेज एंड करंट, या वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट which represents variation of voltage और AC voltage and AC current with respect to time t। ये आपका वेव फॉर्म हो गया, टाइम डायग्राम हो गया, और 2 फेजर्स टाइम डायग्राम। और ये टाइम डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वोल्टेज एंड दोनों बोथ फेजर्स, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है। मतलब जिस टाइम पर वोल्टेज 0 होता है उसी टाइम पर करंट भी 0 है, जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी उतने ही टाइम पर मैक्सिमम होता है। टाइम डायग्राम ऑफ V एंड I, वोल्टेज, 2 फेजर्स, वोल्टेज एंड करंट। अब इसी के हेल्प से अब हम भी इक्वेशंस 1 एंड 2 के हेल्प से हम इसके फेजर डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों सेम फेज में है। मतलब V वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V0 sin ωt और करंट के लिए I0 sin ωt। तो फेजर डायग्राम को हम फिगर 3 में फिगर B इसको कर देते हैं, फिगर B, A माने से शुरू वाला को सपोज किए थे। और यहाँ पर अब फेजर डायग्राम है इसका। तो फेजर डायग्राम में जैसा कि हम जानते हैं कि फेजर डायग्राम में मैग्नीट्यूड को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेकिंग एंगल सम एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अब तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है पीक यहाँ, तो ये V0 हो गया, और करंट को थोड़ा सा नीचे, लेकिन उसी लाइन के लॉन्ग इसको I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनिशियल फेज एंगल, दोनों फेजर एक ही लाइन पर है, फेज एंगल कितना है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच 0 है, लेकिन फेज जो इनिशियल फेज है एंगल है वह एक्स एक्सिस है, वह ωt है। दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ AC सर्किट, AC वोल्टेज, AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। और यहाँ पर I0 sin ωt हो जाएगा, ये इसका फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये I0 sin ωt, और यहाँ पर V0 sin ωt जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया करेगा, जैसा कि हमने बताया पहले फेजर डायग्राम में भी कि फेजर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, फेजर्स के पिक वैल्यू का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को, और करंट का जो पिक वैल्यू होगा वह रिप्रेजेंट होगा इस लाइन से, यहाँ से, ये इसके द्वारा, और ये वोल्टेज वाला यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो ये रिप्रेजेंट करेगा V0 sin ωt, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो से इस पॉइंट तक। और ये रिप्रेजेंट करेगा, सपोज कर देते हैं ये A है, ऊपर वाले को ये सपोज कर लेते हैं, नीचे वाले को भी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है V0 sin ωt जो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ V0 वोल्टेज का,
वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि वी को रिप्रेजेंट करेगा, और ओ से बी तक का जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आई इजकल टू आई नॉट, आई इजकल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आई जीरो, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ alternating current represents the instantaneous value, OB represents the instantaneous value of current I equal to I naught sin omega t. So this is ये figure C represents phasor diagram of circuit, AC circuit containing resistor only, जिसमें कि स्पष्ट है कि दोनों मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों मतलब वोल्टेज का पिक वैल्यू और करंट का पिक वैल्यू दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है, सेम लाइन के लॉन्ग है, दोनों सेम लाइन के लॉन्ग है। इसको सपोज करें तो ये OP रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को और OQ रिप्रेजेंट कर रहा है करंट के पिक वैल्यू को, तो दोनों सेम लाइन के लॉन्ग है, तो दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है, 0 है। कंटेनिंग resistor only and phase angle between in this circuit, in this phasor diagram, angle between voltage and current is 0, angle between voltage and alternating voltage and current is 0 because both are representing along the same line, दोनों वोल्टेज का पिक वैल्यू और करंट का पिक वैल्यू दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है एक ही लाइन के लॉन्ग, तो फेज एंगल कितना हो गया, 0 in the above phasor diagram, और in this phasor diagram phase angle between alternating voltage V and alternating current I, which are two phasors, is phi equals to 0. Now average power dissipated in the resistor as given by Joule's law of heating effect, that is Joule's law of heating is, we can calculate it, average power dissipated औसत व्यय होने प्रतिरोधक से रजिस्टर से व्यय होने वाली औसत शक्ति एक कंप्लीट साइकिल में वह 0 नहीं होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC 0। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में, AC के एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, लेकिन प्रतिरोधक से AC करंट फ्लो करने के बाद जूल्स हीटिंग के कारण जो पावर डिसिपेट होगा, जो पावर व्यय होगा, डिसिपेट होगा, वह 0 नहीं होगा। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इज, तो ये कैलकुलेट करना है, ये 0 नहीं होगा। हालांकि एवरेज करंट, एवरेज वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू करंट AC का या अल्टरनेटिंग करंट का या वोल्टेज का वह 0 होता है, लेकिन पावर डिसिपेटेड ड्यू टू जूल्स हीटिंग इज नॉट 0 इन वन कंप्लीट साइकिल। जूल्स हीटिंग इज एवरेज पावर के लिए P एवरेज, और इसको P बार से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको एंगुलर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एवरेज वैल्यू के लिए। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होता है पावर का P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर इसका अंडर ब्रैकेट में रख करके इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पावर को अंडर ब्रैकेट रख करके, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रख करके हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एंगुलर ब्रैकेट एवरेज के लिए एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं पावर, उसका एवरेज का सिंबल है। तो P एवरेज और P बार और P एंगुलर ब्रैकेट जो अंदर में, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका एवरेज लिया जा रहा है, इसलिए P में। अब और
P average or angular bracket P is equal to I is equal to instantaneous power dissipated in a resistor is I square R. So I is equal to, here I is equal to I naught sin omega t, instantaneous value of AC is I naught sin omega t, therefore I naught square, यहाँ I इज रिप्लेस्ड बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, उसका स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू आर अंडर ब्रैकेट। अब आई नॉट स्क्वायर आर दोनों कांस्टेंट है, उसको हम एवरेज वैल्यू का सिंबल से बाहर कर लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू इसको निकालने के लिए इसको अब हम साइन पावर फंक्शन के रूप में है, इसको मल्टीपल एंगल के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और एवरेज पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर इज आई नॉट स्क्वायर आर, ये एंगुलर ब्रैकेट से बाहर है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को एक्सप्रेस किया जा सकता है मल्टीपल एंगल के रूप में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है, देयरफॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, दैट इज कॉस 2 थीटा, थीटा इज रिप्लेस्ड बाई ओमेगा टी अपॉन 2। अब यहाँ 2 को भी बाहर कर लें हम, तो यहाँ आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, अब यहाँ पर 1 अंदर में 1 माइनस, और यहाँ पर cos 2 ओमेगा 2 cos 2 ओमेगा टी, 2 cos ओमेगा टी, इसका एवरेज। अब cos 2 ओमेगा टी का एवरेज हम फिर निकाल सकते हैं पूरे 1 कंप्लीट साइकिल में, cos 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन पूरा टी से डिवाइड करके एक कंप्लीट साइकिल में, तो उसका cos 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, वह 0 आ जाएगा, उसका एवरेज वैल्यू 0, तो टर्म एक ही बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2, तो दैट इज आई स्क्वायर आर। देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू 1, एवरेज पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर इज आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और एवरेज वैल्यू cos 2 ओमेगा टी का 0 होता है, तो वह फर्स्ट टर्म में तो 1 है, तो 1 माइनस 0 दैट इज केवल बच जाएगा कितना, वो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, दैट इज हाफ 1/2 आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, बिकॉज एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं cos 2 ओमेगा टी, जब मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किया था उसमें भी यूज़ किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0, एक टर्म तो 1 ही है, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, और cos 2 ओमेगा टी का 0, तो इसलिए 1/2 इंटू आई स्क्वायर आर इंटू 1, दैट इज 1/2 आई स्क्वायर इंटू आर। यही फॉर्मूला हो गया एवरेज पावर डेसिपेटेड इन ए रजिस्टर ड्यू टू जूल सिटिंग, एंड इट इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस केस में अगर कर दें हम तो ये 2 हो जाएगा, और एवरेज वैल्यू को, ये फार्मूला तो हमें मालूम हो गया, एवरेज पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर, पी एवरेज, पी अंडर एंगुलर ब्रैकेट इक्वल टू हाफ 1 बाई आई नॉट स्क्वायर आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ AC। अब आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई 2 √2, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस, तो इसलिए अब आई आर एम एस के रूप में हम एवरेज पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/2, और आई नॉट की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं √2 इंटू आई आर एम एस, बिकॉज हम जानते हैं फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, पढ़ा है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए ही हमने रिप्लेस कर दिया है, आई नॉट की जगह √2 इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। पीक वैल्यू के रूप में तो एवरेज पावर डेसिपेटेड इन ए रजिस्टर ड्यू टू जूल सिटिंग इज पी एवरेज इक्वल टू एवरेज पावर 1/2 आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर आर, और ये 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ AC के लिए है। तो यहाँ पर √2 इंटू आई आर एम एस स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो सीधे ही हो जाएगा ये आई स्क्वायर आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आर, एंड दिस इज फाइनल इक्वेशन, दैट इज वी कैन टेक इट एज इक्वेशन 3। So this is average power dissipated in a register due to Joule sitting in 1 complete cycle of AC. In terms of peak current, it is average value
ऑफ पावर, एवरेज पावर डिसिपेटेड 1/2 आई नॉट स्क्वायर आर रेजिस्टेंस का वैल्यू है, आई नॉट पीक वैल्यू है, और आरएमएस वैल्यू के टर्म में आई नॉट को रिप्लेस कर दिया √2 इंटू आई आर एम एस, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर डिसिपेटेड in a resistor due to joule sitting in one complete cycle of AC, which is clearly it is not 0. और इसी डेरिवेशन के साथ एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, विच इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट ऑफ क्लास 12। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।